Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is Grade 3 Science, Unit number 1, The Nature of Science. Lesson number 2, How do scientists find answer? We are going to cover page number 8, 9 and 10, lecture number 1. Dear students, today we will learn about scientific methods and how to conduct the scientific methods. First of all, I would like to request you to make sure that you have your science books, science classwork notebooks and your complete stationery available with you. Please pay attention to the teacher and do your work neatly. If any questions cross your mind, please note down those questions and you can ask those questions in the discussion session. Let's begin. Please open page number 8 of your books. Write date and day on the top. A very important question is that how do scientists find answer? Scientists किस तरह से आंसर्स फाइंड करते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी चीज़ साइंटिस्ट किस तरह से जानते हैं नई चीज़. फॉर दैट वी हैव अ वेरी proper method for this and it is called scientific method. What is scientific method? Scientific method is a method through which it is a series of steps through which scientists find out answers about their questions. It is basically a series of steps. So there are few steps involved in this method. What are those steps? We are going to discuss that. First of all, the first step is ask a question. Asking a question. If there will be no question, there will be no answer. So एक आंसर के लिए, एक डिस्कवरी के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक क्वेश्चन पूछें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई मशीन बनानी है तो आप यू फर्स्ट रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द नीड ऑफ दैट मशीन. कि अगर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये काम करने के लिए ये एक मशीन होनी चाहिए, इस तरह की एक मशीन होनी चाहिए, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर आपके जहन में ये ही नहीं आएगा कि इस काम के लिए, ये काम करने के लिए हमें एक इन्वेंशन की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स यू वोंट वर्क अबाउट दैट. अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर ग्रेविटी के बारे में ना जो है वो क्वेश्चन करते कि वाई द एप्पल फेल ऑन द अर्थ, तो ग्रेविटी रिकग्नाइज ना होती. और अगर ग्रेविटी रिकग्नाइज ना होती तो हमारी बहुत सी डिस्कवरीज इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे ना होती. सो फर्स्ट यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू मेक अ डिस्कवरी, टू रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम. आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इन्वेस्टिगेशन. We ask a question, then we start our investigation, we collect data and we then work on it. Then why something happens like that, इस तरह से क्यों होता है, and we start working on it. So this is called investigation. Investigation is when you try to find the answers of some questions. It is called investigation. Investigation के मज़ीद क्या steps हैं, we will discuss it later. Okay, the next step which is included in the scientific method is repeat investigation. आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा रिपीट करते हैं टू मेक श्योर दैट कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं. एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपके रिज़ल्ट्स चेंज ना हो. सो हम दोबारा अपने इन्वेस्टिगेशंस को रिपीट करते हैं एंड आफ्टर रिपीटिंग इन्वेस्टिगेशन वी ड्रॉ आवर कंक्लूजन. कंक्लूजन इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, फाइनल आंसर. When you are done with all the experiments and everything, all the observation and everything else, then you find out okay, this happens when, जब ये होता है तो इसका ये result होता है, you find a conclusion. So let's do the question that is given on this page, scientific method. Here few steps are given. You need to number these steps and try to arrange them in a sequence. What are these steps? Investigate, ask question, draw conclusion and repeat investigation. आपके ख्याल में पहला स्टेप क्या होता है? First of all, of course, you need to ask the question. Question आप पूछेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. जब आप इन्वेस्टिगेट कर चुकेंगे देन यू विल रिपीट योर इन्वेस्टिगेशन. आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को रिपीट करेंगे एंड थर्डली यू विल ड्रॉ अ कंक्लूजन. ओके,
Now come to the next question. Please look at the picture and try to think what this man is doing here. What is this man, this scientist, doing here? Well, if you look carefully, the scientist is collecting water from the stream, and he is entering data because he is holding a laptop. He is entering data into his laptop. तो ये साइंटिस्ट जो है डाटा कलेक्ट करके और उसको जो डाटा है उसको स्टोर कर रहे हैं अपने पास, उसको अरेंज कर रहे हैं ताकि और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि वो एंड पर एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें. So this is a scientific method. Now let's come to next page number 9. Here you look that a scientific method is given here. In brief, there is an experiment, and through this experiment I am going to explain you the steps of scientific method. First of all, look at this page. In the first yellow box, here's some seeds are given, and the question is, here you can see there are some questions given here. Here it is written that first of all, in the start of the scientific method, you ask a question. Now here, what is your question? That do seeds need water to grow or not? कि सीड्स को बड़े होने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन. अब व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? यू आर गोइंग टू सर्कल दिस क्वेश्चन हियर. आप इस क्वेश्चन को जो राइट साइड पे गिवन है इसको सर्कल करेंगे पेंसिल से, इसके गिर्द एक सर्कल बनाएंगे. सो हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा कि सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए या बड़े होने के लिए या प्लांट में चेंज होने के लिए पानी चाहिए होता है या नहीं. दिस इज़ आवर question. Now after question, what do we do? After recognizing the question, we investigate. Investigate करने के लिए हम क्या करते हैं? Investigation के आगे मज़ीद 2 steps होते हैं. What are those steps? Here let's see. इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम हाइपोथेसिस एक बनाते हैं. व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज़ द पॉसिबल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जिसके जो भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, वो येस और नो में भी हो सकते हैं, वो मज़ीद वैसे भी जो है वो कोई आंसर्स हो सकते हैं. तो आपके क्वेश्चन के जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो सब आपके हाइपोथेसिस हैं. आप जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले आपने एक क्वेश्चन सोचा, उस क्वेश्चन के बाद आपने उसका हाइपोथेसिस बनाया कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है. फिर उस आंसर को आप क्या करते हैं? आप एक फेयर टेस्ट पे उसको आप चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर. प्लान अ फेयर टेस्ट. आप उसके ऊपर जो है उसको एक दफ़ा टेस्ट करेंगे. अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक है, अगर वही रिज़ल्ट आ रहा है आपको जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, इट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट. अगर नहीं तो फिर आपको अगेन दोबारा हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा और आपको उस टेस्ट के रिज़ल्ट्स देखने पड़ेंगे. सो प्लान अ फेयर टेस्ट. चेंज ओनली वन थिंग, कीप एवरीथिंग एल्स द सेम. आपने सिर्फ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक फैक्टर चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना होगा और बाकी सब चीज़ों को सेम रखना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी में, तो आप ठंडा पानी और गर्म पानी 2 चीज़ें ले रहे हैं. अमाउंट ऑफ शुगर आप उसमें देखेंगे कि सेम रखनी है आपने, और आप एक तरफ ठंडा पानी एक तरफ गर्म. चेंज क्या हो रहा है? पानी का टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं. तो फिर आपने देखना है कि कौन से पानी में शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही है, तो वो आपका फिर बाकी चीज़ें सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ पानी का टेम्परेचर डिफरेंट है. यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है. और फिर उसके बाद आप जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, उस डाटा को. उसको आप या तो वर्ड्स की सूरत में, या फिर आप डाटा 1 2 3 के डाटा की सूरत में, किसी भी सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में, किसी भी सूरत में आप उस डाटा को रिकॉर्ड करके अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखते हैं कि मैंने ये जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसका ये रिज़ल्ट आया था. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन. आपने साइंटिफिक मेथड में आपने क्वेश्चन डिस्कवर किया, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन किया, हाइपोथेसिस बना के आपने टेस्ट प्लान किया. उसके बाद आपका जो स्टेप आता है दैट इज़ रिपीट इन्वेस्टिगेशन. आपने अपने इन्वेस्टिगेशन को दोबारा रिपीट किया ये देखने के लिए कि आपके एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम हों, वो हर बार चेंज ना हो जाए. एंड इन द एंड आपने ड्रॉ कंक्लूजन. आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें जो भी आपने सीखा उसकी बेस पे आपने एक कंक्लूजन ड्राइव किया कि आपने जो स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है. ठीक है. सो योर कंक्लूजन इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट.
नाउ लुक हियर एट पेज नंबर 9. यहाँ पर आपने हाइपोथेसिस आपका क्या है? योर हाइपोथेसिस इज़ दैट सीड्स need water to grow. The seeds that are watered will grow because seeds need water. यहाँ पर आपने देखें, आपने दो पॉट्स लिए हैं, पॉट 1 एंड पॉट 2. इसमें आपने इनमें एक में आपको आप पानी दे रहे हैं, पॉट 2 में आप पानी डालेंगे, पॉट 1 में आप पानी नहीं डालेंगे, जबकि सीड्स इन दोनों में एक जैसे हैं. तो आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है? आपका हाइपोथेसिस राइट साइड पे गिवन है, द सीड्स दैट आर वाटर्ड विल ग्रो बिकॉज सीड्स नीड वाटर. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ इन द ब्लू बॉक्स. आप प्लान अ फेयर टेस्ट. यहाँ पर आप एक फेयर टेस्ट प्लान करेंगे और आप इनको लेबल करेंगे अपने पॉट्स को. पॉट 1 में आपने यहाँ पर आप लेबल करें नीचे, पॉट 1 में आप पानी नहीं डाल रहे, सो विदाउट वाटर लिखेंगे इसके नीचे आप, और पॉट 2 के नीचे आप लिखेंगे विद वाटर बिकॉज इट इज़ बीन वाटर्ड. Okay, now let's come to the next page, that is page number 10. On page number 10, here you will read the headings with the and you will match the information with the corresponding बॉक्स. यहाँ पर आपको गिवन है, ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डू यू नीड टेस्ट. नाउ लेट्स सी दैट डू यू नीड टेस्ट किससे मैच हो सकता है. जो आपके ब्लू बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसमें अगर आप देखें कि लेट्स सी कि आपको टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है. सो लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, टेस्ट योर हाइपोथेसिस, रिपीट योर टेस्ट, सी इफ़ योर रिजल्ट्स आर द सेम. आप टेस्ट करेंगे, अपने रिजल्ट्स देखेंगे कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे इन्वेस्टिगेशन और देखेंगे कि आपके रिजल्ट सेम हैं या नहीं. सो द फर्स्ट ऑप्शन गोज़ विद द सेकेंड बॉक्स. उसके बाद हमारी सेकेंड जो येलो बॉक्स में व्हाट इज़ गिवन, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड योर डाटा. कलेक्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन से ब्लू बॉक्स में है? लास्ट वन को देखें आप. कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, यूज़ वर्ड्स, नंबर्स और ड्राइंग्स टू हेल्प. आपने किसी न किसी सूरत में अपना डाटा जो है उसको सेव करना है. लास्ट वन इज़ टेल योर कंक्लूजन. आप जो भी कंक्लूजन आपका निकलता है आप उसको शेयर करेंगे साइंटिस्ट्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ, ताकि आपका जो वो भी टेस्ट करें और उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो और ये कंफर्म हो सके कि आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है बिल्कुल उसका आंसर. नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. लेट्स कम टू योर होमवर्क. Here you see you have to do question number 5 on your page number 10 of science book. Here what you are going to do is कि आपने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. आपके ख्याल में पॉट 1 जो है इट इज़ विदाउट वाटर, और जिस पॉट को आपने पानी दिया था, आपके ख्याल में उन सीड्स के साथ क्या हुआ होगा? पानी दिया वहाँ आपने उन सीड्स को, तो वो जर्मिनेट मोस्ट प्रॉब्लली हो गए होंगे, उनसे एक प्लांट निकला होगा, और वो प्लांट किस तरह का होगा? तो आपने एक पॉट बनाना है, उसमें एक प्लांट बनाना है यहाँ पर, उसमें आपने कलर करने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. इंशाल्लाह आई विल सी यू सून अगेन.